بارے دیگر درود پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین میلاد الصادقین تمام مومنین کی خدمت میں اور امام زمانہ کے حضور اس کی مبارک پیش کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے جشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور جس کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے میاں سعید چوہان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے جشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من التواذق وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. جزاك الله. صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. مومنین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کے جشن کا فارمیٹ تبدیل کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلے قبلہ و کعبہ رونق افروز ممبر ہوں گے اور اس کے بعد جشن کا دوسرا حصہ شروع ہوگا جس میں شعراء کرام اور قصیدہ خوان منقبت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے. تو 4 مصرع عرض ہیں. حب نبی نہیں تو دعا میں اثر نہیں، حب نبی نہیں تو دعا میں اثر نہیں، جیسے بنا مکین مکان ہے وہ گھر نہیں. کتنا ہی ہو درخت تناور ہرا بھرا، ان کا نہ ہو کرم تو وہ دیتا ثمر نہیں. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں قبلہ کعبہ ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین سندرالی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور جشن سے خطاب فرمائیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اور میری گزارش ہے کہ تمام مومنین آگے آگے تشریف لے آئیں. نہیں اوپر اوپر اوپر. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. سامنے آئے زاہد سر، یہاں آ جائیں، آگے آ جائیں. یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی آگے، بھائی صاحب ذرا آگے آ جائیں پلیز. یہاں سامنے آ جائیں، آگے آ جائیں. یہ کیمرے کے آگے آ جائیں سب لوگ. شروع کریں جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ محمد آل محمد.
अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। सलावत। काबिले कदर सादातो बिरादरानो ख़ाहरान इस्लाम, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 1436 हिजरी का जश्न मीलादुस सादिक़ैन सलामुल्लाह अलैहिमा यानी जश्न ईद मिलादुन नबी और जश्न ईद मिलाद इमाम जाफ़र सादिक सलावातुल्लाह व सलामुहु अलैह मुनाकिद हो रहा है। और इस जश्न के लिए आज मैंने जो उन्वान मुंतखब किया है इसे मैंने कभी भी न्यूयॉर्क में नहीं पढ़ा, और ये उन्वान है इम्तियाज़ात पैगंबर इस्लाम। आज हम हुजूर के वो इम्तियाज़ात गिनवाएंगे जो कायनात में अव्वलीन और आखरीन में किसी और के नसीब में नहीं आए। ये आमिना के लाल से शुरू हुए और यतीम अब्दुल्ला पर ही खत्म हो गए। न इन खुसूसियात में कोई नबी शरीक है, न कोई वली शरीक है, न कोई फरिश्ता, न इंस व जिन, न अव्वलीन में से न आखरीन में से। ये इम्तियाज सिर्फ हमारे रसूल के। पहला इम्तियाज, तवज्जो है तुम्हें? ज़हन आ गया जी? ये जरा जवान आ गया जी, गिनना है, जरा सबने गिनना है। पेपर ले ले, जरा हैवी ड्यूटी है आज का जश्न। पेपर लेके नोट करें, शाबाश, लिखते जाए, ताकि आज एक बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन हमारे भाई बहनों को पूरी दुनिया में इसकी मिल जाए कि इम्तियाज़ात पैगंबर। क्योंकि पैगंबर की ज़ात कहना तो नहीं चाहिए, जिसे कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए था वो मुसलमानों में आज तक कंट्रोवर्शियल है। तो इसलिए ज़रूरत पेश आई इस उन्वान के शुरू करने की। तमहीदन सुन लें, फिर मैं इम्तियाज गिनवाऊं। आदम अलैहिस्सलाम आज से मास्टर जी 9,500 साल पहले पैदा हुए थे। इंसानियत की टोटल जो उम्र है 9,500 साल है। 9,500 साल आज तक 9,500 साल पहले पैदा होने वाले नबी की विलादत का दिन कंट्रोवर्शियल नहीं है। फिर अबुल बशर सानी है नूह, फिर हुजूर से 4,000 साल पहले है इब्राहिम खलीलुल्लाह। इन दोनों के डेट्स ऑफ बर्थ में कोई इख्तिलाफ नहीं। मूसा उनके बाद है, कोई इख्तिलाफ नहीं। ईसा की 25 दिसंबर तो आप सबको याद है। कोई क्रिश्चियन दुनिया का दिखाइए जो 25 के साथ 15 भी मनाता हो, कोई नहीं ना। तो अब ये इसलिए जरूरत पेश आई आज के उन्वान को रखने की कि न तो डेट ऑफ बर्थ पे इत्तेफाक है मुसलमानों का, न डेट ऑफ डिपार्चर पे, न पता कब आए थे, न पता कब गए थे। तो जरूरत है ना कि मुसलमानों को बताया जाए। आज कंट्रोवर्सी भी बड़ी हो चुकी है। फतवे आ रहे हैं कि मीलाद न मनाओ, फतवे आ रहे हैं कि मीलाद मनाओ, फतवे आ रहे हैं जुलूस बिदअत है, फतवे आ रहे हैं जुलूस इबादत है, फतवे आ रहे हैं जुलूस
के साथ जो लंगर तकसीम होता है बिदत है, कुछ के फतवे आ रहे हैं इबादत है, कुछ कहते हैं चरागा बिदत है, कुछ कहते हैं चरागा इबादत है। तो आज ऐसा जश्न पढ़ दिया जाए जिसमें सारे के सारे सवालों के जवाब आ जाए। अब जाहिर है नारे आपने लगाने हैं, तब मैंने आगे बढ़ना है। मास्टर जी थोड़ा सा साथ दें, मेहरबानी। बराए खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। तो मैं आज की जो तकरीर कर रहा हूँ, खबर साहब को हमेशा अर्ज करता हूँ अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी बड़ी मेहरबानी। मैं कुर्बतन इल्लाह ये तकरीर आज कर रहा हूँ, इसमें कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया तक कुछ इश्यूज आज इम्तियाज़ात पैगम्बर के ज़रिए वाज़े हो, आश्कार हो जाए। पहले तो ये समझ लीजिए कि आखिर क्यों डेट ऑफ बर्थ में इत्तेफाक क्यों नहीं, डेट ऑफ डेथ में इत्तेफाक क्यों नहीं। पहले तो ये मैं आपको समझा लूँ, फिर मैं इम्तियाज़ात शुरू करता हूँ। ये मैंने सीखा था 90s में, इसका जवाब मुझे मिला था 90s में। मैंने अमेरिकन इमिग्रेशन में उस वक्त होती थी INS, आज है आइस, ठीक है ना। INS में मैंने केस दायर किया, मुझसे पूछा, लेटर लिखा मुझे INS ने कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। मैंने लिख दी, डेट ऑफ बर्थ ये है। उन्होंने कहा तस्दीक के लिए सर्टिफिकेट दाखिल करें। मैंने म्यूनिसिपल कमेटी में कॉल की भाई को कि वहां से सर्टिफिकेट भेजो। उन्होंने कहा जब आप पैदा हुए थे उस वक्त एंट्री का रवाज ही नहीं था। अब क्या करें, सिचुएशन बड़ी खराब हो गई। अब वकील के जरिए फिर कम्युनिकेशन हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई बाप से लिखवा के भेजो। मैंने कहा बाप तो मर गए, बाप तो दुनिया में है नहीं। तो इमिग्रेशन वालों ने मुझे खत लिखा, आज भी मौजूद है, कि अपने अंकल से लिखवा के भेजो। मैंने चचा से लिखवाया, मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने गुत्थी सुलझा दी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में इख्तिलाफ हो उसके दोस्तों से न पूछो, उसके चचा से पूछो। हाजी साहब आगे आ जाए जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हाजी सलामत अली साहब की भी जिंदगी दराज करे। टीवी पे छाए हुए हैं माशाल्लाह, वो जो जुलूस निकलवाया है छाए हुए हैं टीवी पे माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके बख्त इकबाल में और इजाफा फरमाए। तो जी हाँ, जरा मुलाजा फरमाइए कि डेट ऑफ बर्थ किससे पता चली? चचा से। अच्छा, अब ये जो पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, यहीं पर मैं जब आया 90s में, तो उस जमाने में यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। मैं, इमरान खान भी थे इत्तेफाक से उस दिन उस जलसे में, और वो पीर करम शाह भेरवी भी थे, और मैं भी था। हम तीन ने तकरीर की थी। वहाँ कंट्रोवर्सी हो गई कि जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे शहीद, कि उनकी जनाजे की नमाज एक दिन पहले हुई जिस दिन फांसी लगे, या दूसरे दिन डेथ की डेट क्या है, ये हो गया इख्तिलाफ। तो इन्होंने पता कराया वहां से, जिन मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाया था उनकी चिट्ठी आई, तो अमेरिका की पीपल्स पार्टी वालों को और नॉन पीपल्स पार्टी वालों को यकीन हुआ कि डेट ऑफ डेथ ये थी। तो एक बात मुझे और समझ में आ गई, अगर डेट ऑफ डेथ में इख्तिलाफ हो तो जनाजा छोड़ने वालों से न पूछो, जनाजा पढ़ाने वालों से पूछो। तो बात समझ में आ गई आपको? डेट ऑफ बर्थ पूछो तो या वालिद से, या वालिदा से, या दादा से, या चचा से, घर वालों से पूछो। बाहर वाले नहीं बताएंगे कब पैदा हुए थे। यूं कहूं, जिसके घर में पैदा हुए वो बताएगा कि कब पैदा हुए। वो नहीं बताएंगे जो 60 साल के बाद मुशर्रफ में इस्लाम हुए हैं। समझ में आ रही है बात? मास्टर जी नाराज तो नहीं है? पढ़े, कोई बात नहीं। आप नारे लगाएं, अल्लाह ताला आपकी आवाज में बरकत डालेगा। हाँ, आप जाहिर है कि मैं भी तो देखिए सुभान अल्लाह करता हूँ ना आपको, मेरी आवाज कभी बैठी है, इससे तो आवाज और खुलेगी इंशाअल्लाह। हाजी साहब साथ दे, जरा साथ दे।
आज की जो तकरीर है, देखिए ये भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गायब स्पॉन्सर अली अहमद रिजवी का, जी हाँ, कि जिनकी गैबत में मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। और फिर एक और गायब स्पॉन्सर है आगा मुख्तार हुसैन, जी हाँ, वो भी है, जी हाँ। और एक हाजिर स्पॉन्सर है, तो जी हाँ, अभी मैं अर्ज करूँगा तो अख्तर शाह साहब, सैयद अख्तर शाह साहब ने भी मेहरबानी की है, आज के लंगर में हिस्सा डाला है, और मैंने भी इसमें आज के लंगर में हिस्सा डाला है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, अब है ना, ठीक है। तो बस नान जो है फिर वो डबल ना हो जाए, नान ला रहे हैं, ठीक है। तो अब एक माशाअल्लाह, ये तो 4 लोग हो गए, और ख़ास तौर पे मैं सैयद सखी हुसैन शाह साहब का और अपनी बाजी सलमा का, इनकी बेगम साहबा का शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे न्याज दे रहे हैं। ये देखिए, इंशाअल्लाह मिलेगी, आज नारों के मुताबिक मिलेगी। खुश कर दे आज सादिक़ैन शरीफैन को। तो मैंने पिछले, अल्लाह गवाह है, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के कह रहा हूँ, दूसरा गवाह सज्जाद है, इससे पूछ लीजिए, पिछले हफ्ते $8,000 कमाया है। इसीलिए तो मैंने आज ये सारी डेकोरेशन मैंने करवाई है। इंतजामिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मैंने ये सब खुद करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला अख्तर अब्बास को जिंदा और सलामत रखे, अली रिजवी को, इन 2 बच्चों ने ये सारी डेकोरेशन माशाल्लाह की है। और इसी तरह से हम मरकज़ी जश्न मौलूद काबा की डेकोरेशन भी हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लंगर का एहतमाम भी करवाएंगे, आप फिक्र ना करें, आप जलसा करें, बाकी एहतमाम हमारे सपुर्द कर दें। सजाद का भी शुक्रिया, देर से आए मगर उन्होंने भी काफ़ी इसमें साथ दिया है। ख़ास तौर पे इन 2 बच्चों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ज़फ़र शाह साहब का भी हाई स्कूल भी शुरू हो गया है, अल्लाह करीम सबको सलामत रखे। और जाहिद हुसैन, ये जो नए आए हैं, इन्होंने आज बड़ा काम किया है माशाल्लाह। हसन चट्ठा ने भी बड़ी खिदमत की है। मैं कहूँगा तमाम भाई बहन आइंदा अपने बच्चों को भेजें, स्कूल भी शुरू हो गया है, दर्स भी शुरू हो गए। ख़ास तौर पर जब जश्न वगैरह हो तो डेकोरेशन में हाथ बटाएं, ताकि रिज़्क़ व माल में बरकत हो, औलादों की इस्लाह हो, खातिमा अलल खैर हो। बराए खुशनूदी मोहम्मद और आले मोहम्मद सलावत। तो अब मैं जश्न शुरू कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जैसे वादा किया है 8 बजे तक पढ़ूंगा। मैं 7:05 पे बैठा हूँ, 5 मिनट 6 मिनट मियाँ सईद चौहान साहब ने तिलावत की है, तो हमारा वादा इंशाल्लाह पूरा रहेगा। टाइम पे हम शुरू करेंगे, टाइम पे यहाँ जश्न और मजलिस ख़त्म होंगे। 9 बजे आज इंशाल्लाह लंगर लग जाएगा। डायरेक्टर प्रोग्राम और खजानची साहब जनाब खावर अली खावरी साहब इसके गवाह हैं। इंशाल्लाह आज बिल्कुल 9 बजे लंगर लग जाएगा। अब अल महदी सेंटर के कवानीन बदल गए हैं, टाइम पे शुरू होगी मजलिस, टाइम पे ख़त्म होगी, टाइम पे जश्न शुरू होगा, टाइम पे इंशाल्लाह ख़त्म होगा। मौलूद काबा बेशक फजर तक टाइम ले लें, हम हाजिर हैं, मगर जो टाइम पे शुरू करेंगे टाइम पे ख़त्म करेंगे। ऐलान कर देंगे कि सारी रात शब बेदारी होगी मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह के कसीदों की वजह से। अब मैं बढ़ रहा हूँ, जरा नारा लगवा दे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं जश्न शुरू कर रहा हूँ। अब जश्न शुरू हो रहा है। पहली खुसूसियत, पहला इम्तियाज हमारे आका का ये है कि कायनात के पहले मोहम्मद हैं हमारे रसूल। न कोई नबी मोहम्मद गुजरा, न कोई वसी मोहम्मद गुजरा, न कोई फरिश्ता मोहम्मद गुजरा, न कोई जिन मोहम्मद गुजरा। मोहम्मद पहले हैं हमारे नबी। और अब जरा मोहम्मद का माना भी समझ लीजिए, 3 लफ्ज़ें समझ लें, बल्कि 4। हामिद, तारीफ करने वाला, महमूद, जिसकी तारीफ की गई हो, अहमद, जिसकी निस्बतन ज्यादा तारीफ हो, मोहम्मद, जिसकी हर एतबार से ज्यादा तारीफ हो। जिस जितनी तारीफ किसी की न हो उसे कहते हैं मोहम्मद।
تو محمد کون ہوا؟ جس کی تعریف سب سے زیادہ ہو. حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، احمد جس کی نسبتاً زیادہ تعریف ہو، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، جس سے بڑھ کے کسی کی تعریف نہ ہو. اچھا عجیب بات ہے، اس جملے پہ غور کرنا. بندے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مدح، یہ ثنا خان ہے نا، مدح و ثنا، مداح اہل بیت، آپ کے لاہور کے تھے محسن نقوی، مداح اہل بیت، اہل بیت کی مدح کرنے والے. بندے کے لیے جو لفظ ہے مدح ہے، یا بندے کے لیے جو لفظ ہے وہ ثنا ہے، ثنا خانی کر رہا ہو، یا بندے کے لیے لفظ ہے تعریف. حمد لفظ ہے اللہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا حافظ قاری محمد اعجاز صاحب بھی تشریف لائے ہیں، آگے تشریف لائے. بسم اللہ، آگے آ جائے، آگے آپ آگے بیٹا، آگے آ جاؤ، آگے قاری صاحب آگے آ جائے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جشن سرکار مبارک ہو جناب، جشن مبارک ہو جناب، اللہ سلامت رکھے. تو قاری صاحب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حمد مختص ہے اللہ کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین. مدح ہے، مدح. تو پھر حمد کا لفظ اللہ نے جب اپنے لیے مخصوص کیا ہے، الحمدللہ الذی فطرنی، ہم تو ہے اس کے لیے، تو پھر اپنے بندے کے لیے تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. حیران ہوں، اپنے بندے کا نام ہی حمد سے مشتق کیا. آپ سمجھیں ذرا، بدعتوں والے ذرا عقیدت سیکھیں، طریقت سیکھیں، شریعت سیکھیں. جو لفظ مخصوص تھا اللہ کی تعریف کے لیے، اس مخصوص لفظ سے مشتق کر کے نام محمد بنایا. سمجھے ذرا خدا را. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ؟ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. اچھا، سب سے زیادہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی سب سے زیادہ تعریف، کیونکہ 27.5 ملین ایئرز اگو سے تو نسناس تعریف کر رہے ہیں، 9,500 سال سے انسان تعریف کر رہے ہیں، اور کم از کم لاکھوں سالوں سے مخلوق خدا تعریف کر رہی ہے. جن ہیں، فرشتے ہیں. تو اللہ کی تعریف سب سے زیادہ ہے، حضور سے زیادہ ہے. مگر میں حیران ہوں، اللہ کو چاہیے تھا اسے بناتا محمود، خود بنتا محمد، کیونکہ محمد کی تعریف اس سے تو زیادہ نہیں. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کوانٹٹی میں جتنی تعریف اللہ کی ہے اتنی تو رسول کی نہیں ہے. اللہ کی تعریف تو رسول کی ولادت سے بھی پہلے ہے. تو میں حیران اس بات میں ہوں، محمد ان کو کیوں کہا، محمود خود کیوں بنا، حالانکہ تعریف تو اس کی زیادہ ہے. عجب نہیں، خدا جواب دے، تمہاری نظر کوانٹٹی پہ ہے، میری نظر کوالٹی پہ ہے. اللہ اکبر. اللہ مولا سلامت رکھے. تمہاری نظر ہے کوانٹٹی پہ، میری نظر ہے کوالٹی پہ. کیسے؟ ٹھیک ہے تعریف میری زیادہ ہے، مگر فرق یہ ہے میری تعریف کرنے والے سارے مخلوق ہیں. یہ میرا حبیب وہ ہے جس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، مجھ جیسا خالق بھی کرتا ہے. تو یہ پہلا امتیاز، پہلا محمد تاریخ کا میرا آقا ہے. اور کیا کہنا،
मोहम्मद के लफ्ज में इतनी चाशनी है, इतनी कशिश है, इतना मैग्नेटिज्म है, इतनी ग्रेविटी है कि जब तक लब लब को चूम न ले मोहम्मद का नाम निकल नहीं सकता। अल्लाह अकबर, मोहम्मद, सुभान अल्लाह। जब तक लब लब को न चूमे तो लफ्ज मोहम्मद, ये खुसूसियत तो अल्लाह ने अपने नाम में भी न रखी। कोई समझ रहे हैं ये नहीं? ये तो अली के नाम में भी न रखी, ये तो फातिमा के नाम में भी न रखी। कायनात में अकेला नाम है मोहम्मद कि जब तक पहले इजहार मोहब्बत ना हो इस्म बा मुसम्मा आ नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ये पहला इम्तियाज हमारे आका का। दूसरा इम्तियाज हुजूर का ये है कि हुजूर हर एक को नमाज पढ़ा सकते हैं। कोई एक भी हुजूर को नमाज नहीं पढ़ा सकता। वे नारा लगाते जाओ तो आगे चल। शाबाश मास्टर जी। हुजूर आदम से लेके ईसा तक, अली से लेके महदी तक, मरियम से लेके बतूल तक, जिब्रील से लेके फितरुस तक, जान से लेके जिन्नी तक, हर एक को हुजूर नमाज पढ़ा सकते हैं। कोई एक हुजूर को नमाज नहीं पढ़ा सकता कि अली जो मौलाए कायनात है वो भी नबी को नमाज नहीं पढ़ा सकते। ये इम्तियाज आमिना के लाल के अलावा किसी और का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बराए खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। गिने। तीसरा इम्तियाज, ये कायनात में पहले नबी हैं, पहले और आखिरी, कि जिनका साया न था। आदम का साया था, नूह का साया था, इब्राहिम का था, इस्माइल और इसहाक के थे, याकूब और यूसुफ के साए थे, इलियास और जुल्किफल के साए थे, यूनुस के साए थे, मूसा और ईसा के साए थे। अगर पहला नबी, पहला इंसान, पहला बशर, पहली मखलूक खुदा कि जिसका साया नहीं था उसका नाम है मोहम्मद। उसकी वजह यह है कि निस्फ नहार पे जब सूरज होता है तो आप जरा साया दिखाएं, जब आधा दिन हो तो न इधर होता है, ला शर्किया वला गरबिया, न मशरिक की तरफ न मगरिब की तरफ। साया तो उस वक्त होता है जब जवाल हो। आमिना के लाल को जवाल तो है ही नहीं, इसलिए साया नहीं। आका करीम का साया नहीं, उनके बाद हैं और भी जिनके साए नहीं, मगर ये पहले है कि जिनका साया नहीं। साया दलील जवाल है, इस हस्ती को जवाल है ही नहीं। यानी हमारे आका वो हैं जो हमेशा निस्फुन नहार पे है, हमेशा उरूज पे है, हमेशा जोबन पे है। कमी हो तो साया हो, साया दलील कमी है। और फिर इसलिए भी कि इन्हीं के साये को न देखकर अदम साया की वजह से जिसने साया किया था अपना, उसने कहा अलमाल उज़िल्लुन ज़ाइल, पैसे के पीछे न दौड़ना। समझो रहे, जब किसी ने कहा तेरा भतीजा तो गरीब है, इसकी रिसालत कैसे चलेगी? फरमाया माल की हैसियत ही क्या है? अलमाल उज़िल्लुन ज़ाइलुन, माल ऐसा साया है कि जिसे पकड़ने जाओ तो आगे आगे दौड़ता है। अल्लाह अकबर। और इससे पीछा छुड़ा लो तो पीछे पीछे भागता है। अब समझ में आई बात कि आका का साया क्यों नहीं था। चौथा इम्तियाज
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये है, आप हामिले खत्मे नबुव्वत है। आज मुझे कॉल आई एक साहब की जो खत्मे नबुव्वत के कायल नहीं है कि हम भी आना चाहते हैं जलसे। मैंने कहा आप आइए, मगर हम तो खत्मे नबुव्वत के नारे लगाएंगे। हमारा तो ईमान है खत्मे नबुव्वत पर, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, आखिरी नबी है। ये इम्तियाज आदम से लेके ईसा तक किसी नबी को ना मिला। खत्मे नबुव्वत अगर है तो वो दस्ते पैगंबर इस्लाम में है, और कोई ऐसा नहीं कि जिसके पास खत्मे नबुव्वत की मोहर। और यही वजह है कि कहा था, या अली अमा तरज़ान तकून मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। आप राजी नहीं है अली कि मैं मूसा जैसा, आप हारून जैसे। इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो जब अली नबी नहीं तो कोई और साहब कैसे कहते हैं अगर कोई और नबी होता तो मैं होता। नारा लगाते जाओ तो आगे चलूंगा। है जरा मुश्किल जाप, आइंदा साल इंशाल्लाह। जी हाँ, इसलिए कि पहले पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर मैं पहले ना पढ़ूं तो ये कभी ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। अब देखिएगा आज से कैसे ऑर्गेनाइज होंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा साथ दे दे आप, नहीं तो फिर अल्लामा अब्दुल हकीम की तरह मैं खुद नारे लगवाऊंगा। यही कर सकता हूं, फिर फरूख मियाँ तो लगवाने से रहे, आका के नारे हैं, फिर इसमें भी शर्मा रहे हैं। तो जरा नारा लगवा दे, मैं आगे चलूं। शाबाश शाबाश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह भाई फरूख मियाँ बड़े कोहना मशक सहाफ़ी हैं और बड़े इम्बायस हैं, गैर मुतअस्सिब हैं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं ये। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला इनके बख्त इकबाल में इजाफा फरमाए, और जर्द सहाफत वालों को अल्लाह जलील और रुसवा करे। जो तालिबान की तारीफ़ें करते हैं, अलकायदा की तारीफ़ें करते हैं, जो दाइश की तारीफ़ें करते हैं, अल्लाह उनको बर्बाद करे। ये जर्द सहाफत हुजूर के दौर से ही शुरू हो गई थी, जब वो फैक्ट्री बनी थी रिवायतें करने की। तो अब कितने हो गए? 3? कितने बयान कितने किए? 4 कर दिए। अच्छा माशाल्लाह। 5वां इम्तियाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, कोई नबी कभी मेराज पे नहीं गया। ये पहला नबी है कि जिसको मेराज नसीब हुई है। कोई मा फौकल अर्श नहीं गया। ये पहला नबी है कि जो गया है और दामन वक्त को समेट के गया है। कमाल तो ये है, एक और नबी गया है मगर तूर तक, ये गया है मरकज नूर तक। वो नबी मूसा जो तूर पे गए, उनको अल्लाह ने कहा फखलाना अलैक, जूते उतार दो, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस से तुवा की यरूशलेम की मुक़द्दस वादी आ रहे हो तो जूते उतार के आओ। और हुजूर के बारे में सीरत निगारों ने लिखा कि जब जिब्रील लेके जाने लगे हैं, अल्लाह जब लेके जाने लगा तो हुजूर तस्मे खोलने लगे। अल्लाह की आवाज आई, मेरे हबीब वो कलीमुल्लाह था, तुम कलामुल्लाह हो। उनसे कहा था तूर की तजल्ली के लिए जूते उतार के आओ। आपसे कहता हूं मरकज नूर पर जूतों के साथ आओ, इसलिए कि मैंने सारी कायनात आपके जूतों के तलवों के सदके में बनाई। अल्लाहु अकबर। मेराज मिली हुजूर को, किसी नबी को नहीं मिली। इमामों को मिली है मेराज, नबियों में से सिर्फ नबी अंबिया है कि जिनको मेराज मिली। और अजीब मंजिल फिक्र है कि जो छठी खुसूसियत है, छठा इम्तियाज रसूल का ये है, इस पर खास तवज्जो रहे।
کہ لما خلق محمد فی بیت عبد المطلب و عمران، جب حضور پیدا ہوئے تو نور اللہ الکون والمکان، اللہ نے ساری کائنات میں اپنا نور پھینکا. واشرقت الارض بنور ربہا، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہ تھا کہ جو اس شب منور نہ ہوا ہو جس شب میں حضور آئے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق چراغاں کرتا ہے. ہماری حیثیت اتنی ہے ہم مسجد کو منور کر سکتے ہیں، اللہ کی حیثیت یہ ہے اس نے کائنات کو منور کیا ہے. تو چراغاں کرنا بدعت نہیں، عین عبادت ہے، اس لیے کہ سیرت خدا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ باتیں ہو گئی. محمد و آل محمد صلوات. امتیاز نمبر 7، ساتواں امتیاز ہمارے آقا کا. اگر یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ ظاہر امتیاز تو بہت ہے، مگر آج میں نے بہت مختصر اور خاص طور پہ جلسے کی مناسبت سے، یہ ہے میلاد النبی کا جلسہ. 7واں امتیاز یہ ہے، کسی نبی، کسی امام، کسی ہستی، کسی کی ولادت پر اتنا لنگر نہیں چلا جتنا آمنہ کے لال کی ولادت پہ چلا ہے. پڑھیے تاریخوں میں، عبد المطلب نے 12 مہینے لنگر چلایا. کوئی سمجھ نہیں. آمنہ دودھ بانٹتی تھی اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی میں، اور اگر جملہ سمجھ لیا اور اس جملے پر توجہ کر لی تو جشن مکمل ہو جائے گا. خدا کی قسم 50 سال لنگر لگایا ابو طالب نے احمد مصطفیٰ کا. 50 سال. جائیں تاریخیں پڑھیں. کر سا 12 مہینے دادا نے، سال پورا ماں نے، سبھی نے دودھ کی، اور چچا نے، مربی نے، سرپرست نے، بزرگوار نے، محسن نے، ساری عمر. ابو طالب اپنی زندگی کی آخری صبح تک اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں لنگر لگاتے رہے. تو ایک بات طے ہو گئی، لنگر سرکار کا بدعت نہیں، یا سنت عبد المطلب ہے، یا سیرت آمنہ ہے، یا سیرت ابو طالب ہے. ابو طالب کی دشمنی ہے، حضور کی خوشی کو تو ختم نہ کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا لنگر. 8واں امتیاز میرے نبی کریم کا، توجہ سے سن لیجئے، یہ ہے کہ ان اللہ خلق الشمس والقمر والنجوم، اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، والبروج، اور برج بنائے 12 منور نور کے، والنور، اور مطلقاً نور جو روح زمین پر بھیجا. کب بھیجا، کب بنایا؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کا نورانی وجود بنایا. یعنی جملے کی قدر کرنا، یہ جو دونوں آنکھیں چمکتی ہیں یہ صدقہ ہے محمد کا. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر.
अगर आका ना आते, आका का नूर ना होता, उनकी आल का नूर ना होता तो दुनिया नाबीना होती। बीना चल रही है तो आमिना के लाल के नूर का सदका है। तो एक बात तय हो गई कि जब पैदा हुए फिजिकली तब तो कायनात को मुनव्वर किया, और जब नूर की पैदाइश हुई तो सूरज बनाया, चांद बनाया, बुर्ज बनाए, सितारे बनाए। अब समझ में आई बात। हम भी हैं दुआ उन हस्तियों की, उनकी बेटी की दुआ हम हैं। जब कोई किसी की वजह से पैदा होता है तो वो खुद को गुलाम कहता है, जो फीमेल हो खुद को कनीज कहती है, और गुलाम आका के इशारों का इंतजार करता है, क्योंकि सूरज बना है आका की वजह से, सूरज को इंतजार है आका इशारा करे। चांद बना है आका की वजह से, चांद को इंतजार है आका इशारा करे। तभी तो इशारे से सूरज पलटा लिया, इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, इशारे से ज़हरा को ज़हरा के दरवाजे पे बुला लिया। अल्लाह तो ये चरागा हुआ। अभी तो हुजूर का बदन बना भी नहीं, अभी तो नूर आया है और चरागा हो रहा है। तो भैया जो नाबीना है वो जश्न ना मनाए, बीना तो मनाए। कोई समझ रहे हैं या नहीं? क्योंकि ये आंखें मिली है तो सदका मोहम्मद से, ये कायनात है तो सदका मोहम्मद से। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना होते तो कायनात ना होती। ये कायनात है तो आपके सदक़े में है। नवा इम्तियाज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है। जिस शब में हुजूर पैदा हुए, उस शब में इब्लीस जा रहा था चौथे आसमान पर। यह पहले जाता था 7वें तक। जब ईसा पैदा हुए तो अल्लाह ने रोक दिया 3 से, अब जाता था 4थे तक। वहां से गैब की खबरें लाता था, जैसे ये नजूमी वगैरह करते हैं। हाँ, ये वही है। करते वरते कुछ नहीं होता होता, कुछ नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं होता। हाजी साहब से पूछ लीजिए। जी हाँ, तो आजकल हमारी कौम दौड़ रही है। जी हाँ, तो वो जाता था 4थे आसमान से, खबरें लाता था गैब की और लोगों को बहकाता था। गैब की खबरें लाके लोगों को बहकाता था। आज जो है वक्त विलादत मुस्तफा, नमा इम्तियाज सुने, नमा है ना? जब शाबाश 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 शाबाश। तो 4थे आसमान पर यह पहुंचा गैब की खबरें लेने के लिए। आगे देखा जिब्रील खड़े थे, हाथ में गुर्ज था। उन्होंने गुर्ज मारना चाहा, ये वहां से भागा और ये कह के भागा, खुदा की कसम, जब जिब्रील ने कहा आज के बाद तुम्हारा दाखिला किसी आसमान में नहीं होगा, आज के बाद तुम जमीन में रहोगे, आसमानों में नहीं आ सकते उड़कर, उसने फौरन कहा क्या वो आ गया? भाई बेदार बैठे हैं या नहीं? खलीफा साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, यहाँ बैठ जाए। क्या वो आ गया? इसका मतलब यह है कि उसको भी इंतजार है। जुमला कहूंगा अगर समझ लिया तो माल जश्न हासिल हो जाएगा। पता चला इब्लीस भी इंतजार का मुनकिर नहीं है। कोई समझ नहीं है? नहीं, उसे भी हादी का इंतजार है। वो भी जानता है कि कोई है कि जिसके आने के बाद मुझे जाने कोई नहीं देगा। उसे वहां से यू टर्न लिया, ये नवा इम्तियाज चल रहा है। उसे वहां से यू टर्न लिया,
यू टर्न लेके उसने पूछ लिया था फरिश्तों से कि कहां पर है, क्योंकि उसने खुद देखा, ये इब्लीस के जुमले कि मैंने देखा कि कैसर और किसरा के कुंगरे, अहले पंजाब कहते हैं किंगरे, उर्दू वाले कहते हैं कुंगरे, वो कुंगरे कुन गरे असल में लफ्ज है कुन गरे, वो कुंगरे गिर गए। दुनिया में जहां बुत रखा था कोई भी, हर बुत सरनिगू हो गया। दरियाए सारा में बरस से पानी न था, वहां पर फौरन पानी आ गया। आतिश कदे फारस में 4000 साल से जलने वाली आग आका की वजह से खामोश हो गई। अरब के जजीरे में कहत था, बारिश नहीं होती थी, फौरन बारिश हो गई, कौंपलें फूटने लगी, हरियाली आ गई, सब्जी आ गई, जितनी सरसब्जी 6 महीने में होती है उतनी एक शब में आ गई, आमिना के लाल के आने की वजह से। अल्लाह तकबीर, नवा इम्तियाज मुकम्मल हो रहा है। इब्लीस चला एड्रेस लेकर कि मीलाद कहां पर है। कोई सुन रहे हैं या नहीं? तो भाई मुनकर मीलाद तो वो भी ना हुआ, वो तो चला वहां पर, आमिना के घर पहुंचा। अब जब वहां पहुंचा, जब मंजर देखा उसने देखा कि एंजेलिस्टिक चेन है, चारों तरफ से बैतुल शरफ को फरिश्तों ने घेर रखा है, वो जिधर से जाए उसे भगा दिया जाए। एक बात तय हो गई, मीराज जब भी होगा फरिश्तों के मासूम हिसार में होगा, हर एक आ सकता है, इब्लीस मीराज में नहीं आ सकता। ये हो गए 9। 10वां और आखिरी इल्तिमा से दुआ। हमारे जो मीडिया वाले भाई आए हैं, मैं मोहसिन भाई की खिदमत में और MR फरूख की खिदमत में एक नुक्ता पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ये मास्टर जी ने मुझे टॉपिक दिया है, इस पर मैं डिटेल से तो बाद में लिखूंगा भी, इंशाल्लाह ये छापेंगे उसको। यहां पर एक कंट्रोवर्सी है मोहसिन भाई कि किसी साहब ने किसी गुस्ताखे शान रिसालत को कुत्ता कह दिया तकरीर में। क्यों फरूख मियां, सो गए? कुत्ता कहा है ना, किसी ने कुत्ता कहा है किसी गुस्ताखे शान रिसालत को, तो उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है आजकल। एक बात मैं आज वाजे कर दूं, ये सुन लीजिए कि कुरान ने हाफिजा बैठे, फमसलुहु कमसलिल कल्ब, बलअम बाऊर की मिसाल है कुत्ते की मिसाल। ये कौन था? ये गुस्ताख था मूसा का। कोई समझे खुदारा? तो जब मूसा का गुस्ताख इंसान नहीं रहता, नजस कुत्ता हो जाता है, आका का गुस्ताख इंसान कैसे रह जाएगा? समझे? समझे? और हुजूर है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक लौलाका लमा खलक़तुल अफलाक। हुजूर का ये दर्जा है, हुजूर अगर चादर ओढ़ ले तो पूरा सूरा मुज़म्मिल का आ जाए, अगर अदा बदल ले तो मुद्दस्सिर का आ जाए। जिसके अदा से कुरान बनता हो, अल्लाह अकबर, जिसकी सीरतों से शरीयत बनती हो,
वो जिसने कभी किसी को कुछ न कहा, जब अम्र इब्ने अब्द वुद आया है फलांग के उस पूरी खंदक को और नेजा गाड़ा है खैमे रसूल में, तो उस मुजस्समे अखलाक ने क्या कहा था? मल्ले हाजर कल, कौन है इस कुत्ते की जबान बंद करने वाला? तो उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है, वल्लाह बखुदा ये शियों क्या नहीं है, ये सुन्नियों ने लिखा है, ये जो अब पढ़ रहा हूं, मैं युखव्विफुल मासूमा अला बाबिही फहुव कल्ब, जो किसी मासूम को दरवाजे पर आकर धमकियां दे वो कुत्ता है। नहीं समझे हैं? ख्वाब ओहद में रसूल को, खंदक में रसूल को दे या मदीना में बतूल को दे। आगे बुलाएं इसको, आगे बुलाएं। दीन दुनिया की चार आगे आ मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नकवी साहब, डॉक्टर साहब आगे आज आगे नारे हैदरी या अली या राशिद जहरी साहब आप भी आगे माशाल्लाह जी, आगे इंशाल्लाह। बस 8 बजे तक पढ़ूंगा, टाइम की पाबंदी करूंगा, पूरे 8 बजे खत्म करूंगा, जितने भी पढ़ सकूंगा। अब तक कितने हो गए? 10वां हो गया या नहीं हुआ? हो गया। चलिए 11वां सुन लीजिए, लिख रहे हैं? शाबाश, 11वीं साबित, शाबाश, 11वीं शरीफ, सुभान अल्लाह। लीजिए नंबर 11, ये भी मीडिया वालों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कंट्रोवर्सी ये है कि ये सलाम क्यों पढ़ते हैं? सलाम होता है ना, जुलूस में सलाम होता है, तो ये सलाम क्यों पढ़ते हैं? दुरूद व सलाम। दुरूद के बारे में तो एतराज करने वाला कुरान का मुनकिर है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये तो जिस काम को अल्लाह भी करता हो, फरिश्ते भी करते हो, वो बिदअत कैसे है? सलाम का सुन लीजिए। सलाम के बारे में कुरान की 2 आयतें सुन ले। व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। दूसरी आयत व सलामु अलैहि यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। याह्या और ईसा के बारे में कुरान कहता है इन दोनों ने कहा था उस दिन भी सलाम जिस दिन याह्या पैदा हुए, ईसा पैदा हुए, उस दिन भी सलाम जिस दिन मरेंगे, उस दिन भी सलाम जब महशर में दोबारा आएंगे। तो ईसा और याह्या की विलादत पे अगर अल्लाह सलाम भेज सकता है, आका की विलादत पर हम सलाम कैसे नहीं भेज सकते? कुरान का या अली नारे हैदरी चरागा भी साबित हो गया। जुलूस फरिश्ते लेकर आए, जलसा अब्दुल मुत्तलिब के घर में हुआ, लंगर अब्दुल मुत्तलिब, आमिना और अबू तालिब ने लगाया। बल्कि अगर मुझे इजाजत है तो मैं एक और लंगर का जिक्र करूं। इन्होंने आज लंगर पकाया है आगा मुख्तार इनकी बेगम, और इसी तरीके से अली अहमद रिजवी उनकी बेगम, और हमारे अख्तर शाह साहब, इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमारे घर वालों का भी उन्होंने मेहरबानी की है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और भाई सखी हुसैन शाह का भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे भी न्याज दे रहे हैं।
अल्लाह ताला इनको बहुत बख्त लगाए और हमारी बाजी सलमा को भी अल्लाह ताला इनके रिस्क को इकबाल में बख्त में और इजाफा फरमाए। मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ, हाजी सलामत अली का तो ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि जो बेचारे जिन्होंने जुलूस में निकलवाया, बहुत ज़बरदस्त जो टीवी पे छा गए हैं माशाअल्लाह। और मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। ज़ाहिर है कि 8 बजे जश्न ख़त्म करना है। एक जुमला और सुन लीजिए, और वो ये है कि सब कुछ तो साबित हो गया, सलाम भी साबित हो गया, दुरूद भी साबित हो गया, जश्न का समा भी साबित हो गया। बीबी 12वां बीबी आमिना ने कहा, मैंने अपने बेटे के विलादत के नूर से शाम के महल देखे। शाम है मक्के से 950 मील दूर, और मक्के के हर काफिर ने कहा, हर मुशरिक ने कहा, हर कुरैशी ने कहा, हर आका गुलाम ने कहा कि जिस सुबह में हुजूर पैदा हुए अभी तक सफेदी तो थी नहीं, मगर हुजूर के नूर की वजह से हम सब ने ईरान के महल देखे 1450 मील। अगर काफिर की आंख में आका की विलादत के नूर का इतना असर है कि उन्हें ईरान नजर आ जाता है, तो फिर आका खाक कैसे है? अल्लाहु अकबर। हमारे यहाँ अहले पंजाब की माएँ, खुद मेरी माँ भी जब मक्खन निकालती थी मंडे के दिन तो फरमाती थी नूर पीर का मक्खन है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि मंगल नूर क्यों नहीं, ये मंडे पीर ही नूर क्यों है, जुमा नूर क्यों नहीं? कहा मौलवियों ने बताया है, अहले सुन्नत के नजदीक मंडे को पैदा हुआ, हमारे यहाँ जुमा को पैदा हुआ। इख्तलाफ है, ठीक है, अहले सुन्नत के नजदीक मंडे है इसलिए नूर पीर है। मैं आज तक ये ना समझ सका जिस दिन में हुजूर पैदा हो वो दिन नूर बन जाए और हुजूर खाकी रह जाए। तो स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ कहते हैं 4 बेटियां थी, हम कहते हैं 1 बेटी थी। हमारे शिया भी हैं कुछ जो कहते हैं 4 थी, बताना भी जरूरी है। हाँ, हमारे शियों में भी कुछ है जो कहते हैं 4 थी, ठीक है ना, ये कारी साहब गवाही दे रहे हैं। हम कहते हैं 1 थी, वो कहते हैं 3 पाली हुई थी, वो लय पालक थी। मगर एक बात आप जरा खत्म कर ले तो मैं नुक्ता खत्म कर, तकरीर खत्म हो नहीं, आप कर ले बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक, ऐलान करता हूं कि जरा आज देखिए हुजूर का जश्न है मिलादुन नबी का, आका के सदके में आप फयाजी से आए दें। हमारे बड़े बिल हैं, बड़ी आज भी बहुत बिल आए हैं माशाल्लाह, तो आप मेहरबानी फरमाएं, अभी दे, अभी खड़े हो जाए ना, कर ले शाबाश। हाँ, जरा कुछ हवा लगवाएं, ये 5-5, 2-2, 3-3 न दे, कुछ 100 भी निकालें, कुछ 20-20, 50-50 भी निकालें। अल्लाह ताला आपको देगा, जो बहुत पैसे वाले हैं वो ज्यादा दे। जी हाँ, मेहरबानी, शाबाश दीजिए। कोई बात नहीं, कोई खराब नहीं, कोई खराब नहीं। हाँ, आपकी दुआ होनी चाहिए। थोड़ा पानी दे दे, खत्म करें बस। 14 पूरे हो जाएंगे ना, इससे बात 14 खत्म हो गए, बस खत्म हो गई, जहमत आपकी। 8 हो गए बस। अब ये डोनेशन का बीच में 1-आध मिनट है, वरना 8 हो गए पूरे। वो गायब अली अहमद भी आ गए, अल्लाह सलामत रखे भाई माशाल्लाह। ये देखिए, हमारे खाबर भाई को डराया था कि आज कोई नहीं आएगा, किसी और के यहाँ जश्न है। मैंने कहा आप डरा ना करें, तो देखिए पूरा हाल भर गया, पूरा हाल भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा आप मुझे मजमा इकट्ठे करने पे लगाए, बाद में आप लोग पढ़े, देखिए कैसा मजमा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या, जब एक 8 है एक बंदे के पास, उस 8 से फायदा उठा। बाहर भी खड़े हैं इंशाअल्लाह, भर गया ना, शिया सुनी सब आ गए माशाअल्लाह। लीजिए, तकरीर तमाम हुई। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है 8 नहीं, ऊपर हो गया।
ये थोड़ा सा वक्फा हो गया, वरना तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। सुन लीजिए, बस मैं इजाज़त लूँ आपसे, शायरों को भी सुनना है, नारे लगाने हैं। जी हाँ, तो कितने हो गए अब तक? ये 12वां जारी है। 12वां जारी है, ठीक है। 14 पूरे कर। चलिए 13वां ये है कि हमारे अहले सुन्नत कहते हैं, कुछ शिया भी कहते हैं कि 2 बेटियां एक साहब के घर में थी। हमारी नजर में वो लय पालक थी, वो भी मोहतरम है, जाहिर है जो शरीफ बेटियां पालते हैं, बेटियां समझ के ही पालते हैं। तो जिनका ये स्कूल ऑफ थॉट है कि 4 थी, वो कहते हैं कि वो साहब हैं ज़ुन नूरैन, 2 नूरों वाले। अब जरा ईमान से बताइए, मैं ये मजहब ना समझ सका कि जिस मजहब में वो साहब 2 नूरों वाले हो गए कि हुजूर की बकौल उनके 2 बेटियां उनके घर में थी, ये मजहब समझ से बालातर है। बेटियां नूर हैं, बाप खाक है। मास्टर जी बताएं, आप बताएं। तो तकरीर खत्म हुई जी, आखिरी है ना? चलिए शाबाश, बस आखिरी है, ठीक है, बहुत मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे आपको। 14वीं खुसूसियत हमारे आका की यह है कि फतहुल बारी फी शरहिल बुखारी में यह लिखा है कि आज भी जब मंडे का दिन होता है तो अबू लहब को पेरोल मिलता है, उनको जहन्नम से निकाल दिया जाता है 24 घंटे। ऐसे ना जनाब, ये हजरत साहब भी गवाही दे रहे हैं। भाई क्या कहने के 24, शाबाश, 24 घंटे तुम जहन्नम में नहीं जलोगे। हालांकि ये वो है जिसे अल्लाह फिरौन से बदतर समझता है। फिरौन को कोसना नहीं दिया, अबू लहब को कोसना दिया है। अल्लाह अकबर। और 24 घंटे के लिए मंडे का दिन ब्रेक है, जहन्नम में तुम नहीं जलोगे। क्यों? इसलिए कि तुमने हमारे नबी की आमद की खुशी में, नबी समझ के नहीं, अपना भतीजा समझ के खुशी का इजहार किया था, और खुशी का इजहार करते हुए काफिरा कनीज को आजाद कर दिया था। इस एक इन्वेस्टमेंट के एवज तुम हफ्ते में 1 दिन जहन्नम में नहीं जलोगे। तो अल्लाह का कानून यह हुआ कि जिस दिन कोई आका का जश्न मनाए उस दिन जहन्नम में नहीं जलेगा, तो जो सारी उम्र जश्न मना रहे हैं ये जहन्नम में कैसे चले जाएंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जैसा कि मोमिनीन आपको शुरू में अर्ज़ की थी कि आज के जश्न का फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो सबसे पहले किबला पढ़ेंगे, उसके बाद तमाम कसीदा खान और शुरा